farm this thing. But most of the people he thanked who supported, and he said many farmers supported, but few farmers and basically Punjab. So Punjab is more important than this kind of confusion. So he took that step. And what is the best part of this is, Santosh ji, that he did not make it a point of his अभिमान का इशू नहीं बनाया उन्होंने, अपने सम्मान का इशू नहीं बनाया उन्होंने. उन्होंने कहा कि मैं कमेटी गठन कर रहा हूँ, उस कमेटी के अंदर फिर इसको फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको रिपील कर रहा हूँ. एंड दैट इज हाउ यू मूव ऑन इफ थिंग्स डोंट. हिमांशु जी, दूर से बता रहा हूँ आपको. मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज. तो मैं दूर से एकदम आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि जो आउटर वर्ल्ड का मीडिया है इसको ऐसे देख रहा है दैट मोदी हैज टू रिट्रैक्ट. ओके, दैट्स वन हेडलाइन. जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, तो ये लोग देख रहे हैं दैट दिस इज अ बिग सेटबैक फॉर मोदी हिमसेल्फ. ओके, दैट्स नंबर वन. सेकेंड इज they are thinking that it has created a model because Sahin Bagh हुआ, उसके बाद से ये लोग एक मॉडल टेस्ट कर रहे थे that how to successfully put forward a spoke in the wheel of any kind of reform, right? और इंडिया अभी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, I mean ग्लोबली, कि सबकी आंखों का एक तरह से आइसोर बोलते हैं ना, आंख का कांटा बन जाना. तो all the developed world, including now China, doesn't want India to be the next, China or की आवाज चली गई. इंडिया हाई, सॉरी किसी का फोन आ गया था. तो इंडिया हाई टेबल पे आके बैठ जाए एंड इंडिया स्टार्ट डिक्टेटिंग द टर्म नोबडी वांट्स. ओके, द लार्जर वर्ल्ड आउटसाइड. तो उनको एक मॉडल मिल गया है कि हाउ टू पुट बैकवर्ड्स, जो व्हील ऑफ progress, how to put a spoke in that wheel. They have tested a formula and that formula has worked. Okay, this is not only apprehension of the West. There are many people coming in my room since morning, and they are saying कि ये जो madness है street पे, this will become a formula, and this will become like a street justice kind of a thing. तो सर वो तो देखिए सर, I have been following him from last 20 years. I have seen reforms in Gujarat. I have seen what he has done with those people who used to throw stones on streets. I have seen how those separatists who are having crores of Indian government money are now languishing in jail and have no power with them. I have seen Jammu and Kashmir become Kashmir, Jammu and Ladakh. So, I know what he can do, and I know when he goes back and he retracts, how he comes back. And this is a strategic decision. He is not out. He has not given up. He has not retracted. It is just that sometimes when something is becoming a nuisance value, and you are surrounded by a lot of other priorities, it makes more sense to give space to it. But if, and I am telling you this very by knowing Modi very much, that if somebody thinks that now he can play around with Modi, I think Modi may be knowing a thing or two more about how to deal with these guys. नहीं, मैं हिमांशु जी, आप और हम कन्विंस हैं. मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों कन्विंस हूँ. क्योंकि जैसे आपने बोला आप उनको 20 साल से फॉलो करते हैं. आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग एंड फॉलोइंग हिम फॉर सेम नंबर ऑफ ईयर्स, एंड ही हैज ऑलवेज, इफ ही हैज टेकन वन स्टेप बैकवर्ड्स, इट वाज ऑलवेज इन द लार्जर इंटरेस्ट एंड विथ अ ग्रैंडर विजन देन एनीबडी कुड एंटिसिपेट, राइट? तो जरूर उनको बहुत बड़ा विजन होगा, तब उन्होंने सर, अगर कोई उनको पहले से जानता है ना, तो कच्छ में जो सरदार सरोवर डैम की जो हाइट है और कच्छ में पानी पहुंचाना, कांग्रेस की केंद्र सरकार होते हुए, और पूरे गुजरात को 24 हर 12 महीने पानी पहुंचाना, इन इटसेल्फ रिक्वायर्ड लॉट ऑफ करेज. डैम की हाइट बढ़ाना, डैम की हाइट को एक लेवल तक ले जाना. So, he has a history of performing. He has a history of giving
results. He has a track record, and that cannot be disputed. एब्सोल्युटली, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, बट जो अपना जो अनपढ़ जनता जो है, जो लार्जर मीडिया है, जो रिएक्ट कर रहा है इंडिया में, अनपढ़ जनता साथ में है साहब के. You know, ये I'll tell you the best part is demonetization जब हुआ तो अनपढ़ जनता ही साथ में थी. और आज भी जब फार्म लॉ वापस लिए ना, तो जितना दुख देश के किसान को हुआ होगा, जितना दुख देश के गांव में हुआ होगा, और सबने कहा होगा किसी ने मोदी का साथ नहीं दिया. घर घर में ये चिंता होगी. Because this guy has earned one thing in India, and that is credibility. That's true. यहाँ पे रूम में लोग बैठे हुए हैं, मैं जान रहा हूँ, सुबह से छाती पीट रहे थे बीजेपी वाले, 11 महीने से छाती पीट रहे थे, ये कर रहे थे. दे आर यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ लैंग्वेज. ना इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, ना इन लोगों ने कभी कुछ दिया सोसाइटी को. लेकिन जिन लोगों ने सोसाइटी को रोज देते हैं कमा के, जो लोग रोज इस देश को देते हैं, उन लोगों को पता है मोदी क्या है. तो मेरा ये मानना है हिमांशु जी, थोड़ा डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन है, आप लोग तो हॉट स्पॉट पे हैं तो आपको ज्यादा मालूम है, बट मुझे लगता है कि जैसे जनता ने रिएक्ट किया ना, सब लोग बोल रहे थे ये गलत है, ये गलत है डेमो, एंड जनता चुपचाप गई और वोट दबा के आ गई, है ना, साइलेंट. तो इसका रिएक्शन साइलेंटली वोट के बटन पे आएगा. मेजोरिटी रोड पे आके तो विरोध नहीं किया, मेजोरिटी वाज सपोर्टिंग द फार्म बिल, बट नोबडी केम ऑन द स्ट्रीट, और वो चक्का जाम को नहीं हटाया लोगों ने. सर, पंजाब में बीजेपी इज नॉट अ पॉलिटिकल फोर्स. तो आज का जो एक्शन है उससे बीजेपी को 50 सीट आ जाएंगी, ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा. ना मोदी जी ने कोई पंजाब में इलेक्शन के लिए काम किया है. यूपी में, वेस्टर्न यूपी में अभी पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें जाठू ने बीजेपी को ही वोट दिया. कोई इफेक्ट इससे नहीं होगा. ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से उठ के है. इस समय देश में बहुत ज्यादा आवाज हो रही है. इस समय देश में आपने कभी सुना है कि एक स्टेट के, सूबे के मुख्यमंत्री जब रिजाइन करते हैं तो सबसे पहले वो दिल्ली भागते हैं और वो दूसरी पार्टी के होम मिनिस्टर, जो इंडिया के होम मिनिस्टर है, उसको जाके मिलते हैं, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मिलते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, और डरे हुए बोलते हैं कि पंजाब बहुत बुरी हालत में है और पंजाब में बहुत हाईली सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, और नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ मिनिस्टर मत बना देना, वो पाकिस्तान से मिला हुआ है. तो वो जाके तीनों लोगों को क्या बताया उन्होंने, क्या इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स उन्होंने शेयर करी, और क्या सरकार के पास इंफॉर्मेशन है, और क्यों सरकार ऐसा मान गई कि एक पूरा तबका और यूथ एलिनेट हो रहे होंगे, इसलिए हमें गुरु नानक जी के पर्व के दिन लेट अस टेक अ स्टेप ऑफ रिकंसिलिएशन एंड लेट्स आके गले मिलते. मैं इसी रूम में और सुबह से कई रूमों में बता रहा हूँ, उत्तराखंड की समस्या के लिए उत्तराखंड में गोलीबारी हुई, रेप हुए, लोगों को मारा गया. यहाँ देश में जो भी स्टेट चाहे अलग हुई है, चाहे एंटी रिजर्वेशन लॉ है, चाहे मंडल कमीशन है, राइट जस्टिस हुई है, मारा गया है, लोगों पे गोलियां चलाई गई है. कांग्रेस का इतिहास है लोगों पे गोलियां चलाने की. ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने रिस्ट्रेंट रखा. उसने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको कोई बगलरा रहा है, ये किसी बाहर के तत्वों ने इनको 26 जनवरी पे रेड फोर्ट पे चढ़ाया है, नहीं तो बंदूकें तो बहुत थी मोदी जी के पास. लेकिन रिस्ट्रेंट दिखाते रहे, मौका देते रहे. पार्लियामेंट में बात कर लो, राउंड टेबल पे बात कर लो, सुप्रीम कोर्ट में आके बात कर लो. लेकिन जब वो समझ गए कि बाहर की ताकतें नहीं छोड़ रही हैं और ये एक नया तरह का युद्ध है, तो इस समय फार्म लॉ की जगह देश पहले, क्योंकि उन्होंने ही कहा था मैं देश झुकने नहीं दूंगा. नहीं, that's good. Let's see how it plays out in coming years. अच्छा, एक और फीडबैक है. COP26 चल रहा था ग्लासगो में, तो we were quite engaged into this. तो मोदी जी ने सबको स्टंप कर दिया वहाँ पे, ठीक है ना. And the kind of influence this time India has played on a global scale of this magnitude, it was never there, never. Exactly.
2070 का जो उन्होंने टारगेट दिया, दैट वाज नोबडीज एक्सपेक्टेशन एंड पूरा वर्ल्ड हिल गया उससे। ठीक है, किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी लोग उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, बट आई हैव नो डाउट कि इंडिया कर पाएगा। और सेकंड जो उन्होंने सोलर अलायंस वगैरह को आगे बढ़ाया, तो दोज आर द स्टेप्स, बट एज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क डिसीजन व्हिच ही हैज टेकन, आई थिंक नोबडी एक्सपेक्टेड एंड दैट हैज क्रिएटेड अ ह्यूज अप्रोवर। और जो COP26 का जो फाइनल ड्राफ्ट निकल के आया, so that was completely vetted, edited and dictated by India. And such kind of diplomacy has never happened in the world, with India influencing it to the core and so much. यूएस से भी ज्यादा हम लोग का इन्फ्लुएंस था इस बार। और आप किसी भी रूम में COP26 में जाते, ठीक है, तो वहां पे इंडिया की ही बात चल रही थी। Yeah, I am aware. Yes, sir. Sir, I just wanted to ask, is this a tactical retreat by the government? Because that's what, I mean, afternoon तक तो मैं भी थोड़ा सा disappointed था, लेकिन फिर मैं मतलब I heard. Maddie, you are from inner circles. You should tell us, no, what is going on. That is my this one, sir, because. No, you are from inner circles of power, no? So you should tell us what happened. No, not at all. But I'll. That small speech of Modi ji itself gives the entire information. And yes, sir. I have full faith in the PM. Yeah, no, वो तो बिना बताए बता दिए, ठीक है। या मैं ऐसे ही बोलना चाहता था, आपने बोल दिया। बस वही है। और हम, मेरे को तो मेरे प्रधानमंत्री में पूरा पूरा विश्वास है, वो हमारे देश को आगे ले जाएंगे। आई थिंक हम लोग आज इतना हम इतना आज हम पीसफुल है ना। एक्चुअली हिमांशु भाई, हम बहुत दिन से, इनफैक्ट हम अरविंद को भी बोले थे ये बात, मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। इट वाज जस्ट अ गट, कि कुछ है। क्योंकि जो बंदे आज तक मुंह से नमस्ते नहीं निकलता था, उनके मुंह से नमस्ते निकलता था। आप समझ लो किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई वाज ट्राइंग टू टेल एवरीबडी कि ये हो क्या रहा है, ये कुछ तो हो रहा है। ये हम लोग को, व्हाई दे बीइंग सो नाइस टू अस सडनली, टू अस हिंदूज और व्हाटएवर इट इज। एंड आज हमको आई थिंक पूरा खुल गया, पूरा दिमाग कि हाँ, this is what, so some gut, that because if you love your country so much, then that gut works then बहुत ज़्यादा. So that's all I wanted to say. Yes, absolutely. Initially, as I said, first time when I heard, I was a little upset, but then later on it dawned on me, maybe there is, obviously, I mean, with Modi you never know, silently सारे काम कर देंगे। and जैसे अभी now I'm wondering what will Rakesh Tikait and the rest of his bunch protest about the rising prices of balloons on the roadside. God knows. So they have been rendered, agenda-less as of now, and I'm pretty sure there's something in the offing. No. Don't underestimate them. They are having huge capacity to create nonsense. They can do it non-stop, and it is national policies and frameworks are not decided on basis of what Rakesh Tikait or Yogendra Yadav does. The situation was much more bigger than that, and the one thing everyone will have to remember and note, that if Modi has taken back a law that he has introduced, then he will also be noting the kind of nuisance that was created. So now the kind of law machinery that is going to be used, because now farmers have been separated from these goons. And the farmers have been asked, and the Jathedar of Akal Takht has also welcomed it. And the farmers have been asked to now go back to the fields on Guru Nanak's birthday. So now what is going to happen is, what is going to remain is the rest of them. And that everyone should just take note of it. Yeah, that अभी तो farmer बीच में
ह्यूमन शील्ड करके यूज किया जा रहा था। हाँ, अभी तो फार्मर बीच में था, फार्म प्रोटेस्ट था, कुछ भी हाथ उठाते तो फार्मर पे हट जाता। अभी तो फार्मर को हटा दिया। But I read that now Owaisi has given out a statement saying he is going to protest against CAA like this, in the same way that the farm protest was done. And do you see Rakesh Tirkare trying to leverage this to up his political clout? Suddenly, do you see in my DP Poochtach Kendra or something? I mean, what has gone wrong with you? I don't know how to answer all those questions. I have no idea what will happen. I have no idea how OAC thinks. But I think, it is a similar question to what Santosh ji asked, that just because it is being perceived that a street protest has led to withdrawal of farm law, then many other people will start protesting. So let me tell you, please listen to Modi ji again. He has not bowed down under pressure because of street protest or protesting idiots on Singhu border. He has not mentioned that at all. He said that a particular community, a particular state is more important. He has not said that he got scared of those protesters. Nowhere he said that. Please listen to what he said that again. And OAC can come and protest because this country has a space in Delhi. Jantar Mantar, everyone can have a camp there and they can protest, sit there and protest. But mind you, तो ऐसे ही प्रोटेस्ट करता है। नहीं, mind you, if you just break the law, then then there are no farmers that are going to be involved in it. Sir, also I see that there might be, a security threat, because if you see 2 days ago, like NSA, Ajit Doval has released an official statement. So, do you see that point as well? Like we can include why this thing has been happened. It is a major issue in that. It is a major issue. Security threat was a major issue. Lot of elements got mixed up in this protest. And this protest was no longer about farmers. Because every time you were asking them what is the problem with the law, they would change the goalpost. They will start talking of something else. So it was not about farm law or it was not about farmers' problem. Lot of elements from across the border, lot of elements from Canada, they all got mixed up. Yeah, and even I think in a way that maybe we have to patience ourselves, that if this kind of thing has happened, there might be something we can, there is really a huge thing coming up. So we just have to keep fingers crossed. No, you remember that if Punjab was handled properly, 1984 wouldn't have happened, and then what happened after 1984 wouldn't have happened. And we wouldn't have required a KPS Gill, and we wouldn't have had so many youth of Punjab die. To some extent, I think we are still paying the price. The Punjab is still paying the price for that. Yeah. And it's really sad. It's really sad because I believe that they are some of the best people in the whole country, and for them to face this is very sad. Punjab is still facing the price, and we are thankful that the Prime Minister could understand that there are designs behind it and he did not get provoked. We are thankful that he decided to take a step back rather than alienating a community. अमित भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। नमस्ते अमित जी। नमस्कार। बहुत अच्छे समय पे आए। इंटरनल थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन की बात हो रही थी। मैं कहा आपसे बड़ा सिक्योरिटी एक्सपर्ट।
नहीं, ये बिल्कुल आप सही हिंट दे रहे हो। एक्चुअली जो मतलब nobody can disclose many such intel outside, बट जो आप समझ रहे हो बिल्कुल सही है और उसके लिए शब्द देने की जरूरत नहीं है। जो इंटेल था बड़ा खतरनाक है पंजाब को लेकर, और ये पहले आ चुका था, 1 महीने 1.5 महीने पहले से ही पुश हो रही थी चीजें। मेरे ख्याल से वो टाइम का इंतजार कर रहे थे कि एक सही समय पर ये कॉल लिया जाए ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। बट कई बार क्या होता है कि आप जो पहले देख चुके हो पंजाब में पहले, यदि उस डायरेक्शन में पंजाब को पुश कर दिया जाए तो वो सिर्फ एक बिल के लिए मेरे ख्याल से वो ज्यादा खतरनाक हो जाता। और इंटरनेशनल लॉबी इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी ऑलरेडी। यहाँ भले ही बिल डाई हो रहा था लेकिन पैसा लगातार पंप हो रहा है और वो एक खतरा था। अभी आपको बता दूं मैं एक डेटा कि अभी क्रिप्टो करेंसीज में मेजर पैसा इन हुआ है इंडिया के अंदर। तो उसके लिए भी आपने ध्यान दिया हो, मोदी जी ने एक लाइन बोली थी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज को साथ आना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो गया है इस तरह की चीजें जो पैसा पंप इन करती हैं देश के अंदर। बहुत कोशिश की जाती है कि वो रोका जाए, मॉनिटरिंग की जाए, पर हो नहीं सकता। अब चैनल इतने हाथ से बाहर आ गए। तो मेरे ख्याल से इतना दबाव ऑलरेडी था और ये अच्छा है। इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये बिल अकेली एक ऐसी चीज नहीं है जिससे आप किसानों का भला कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से we'll have a better plan, और वो मोदी जी ने डेफिनेटली कर लिया होगा, हमें नहीं पता है, पर वेरी सून वी विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग आउट थ्रू हिम। तो मैं इतना डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ कि मुझे हल्का सा अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। मुझे ये नहीं पता था कि ये इसी तरीके से होगा। आई थॉट सम कुछ स्ट्रैटेजिक चीजें भी हो सकती हैं कि हम कुछ स्टेट में करें कुछ में ना करें इस तरह से, पर उससे फिर मैसेज वैसा नहीं जाता। मेरे ख्याल से ये बड़ा क्लियर कट मैसेज गया है और उनके पास अब मुद्दा नहीं रहा है। तो जो वो एलिनेशन की बात हो रही है वो शायद अभी रोकी जा सकती है। और अगले कुछ इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। भले उन इलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, पर आप ये मान के चलिए कि जो देश विरोधी शक्तियां हैं वो डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ करना चाहती थी और उसमें हिंसक गतिविधि भी हो जाती। उसमें बहुत सारे ऐसे इंटेल थे कि दंगे फसाद हो सकते थे जस्ट इलेक्शन के पहले। तो वो मेरे ख्याल से कंट्रोल किया गया है थोड़ा, जो आगे मतलब लॉन्ग रन में हमें समझ में आएगा। सो वी डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन स्ट्रैटेजिकली एंड देयर बी बेटर थिंग कमिंग आउट ऑफ इट। अमित जी, आपने बहुत अच्छा बात किया। एक बात तो आपने बोला, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की आपने। इधर बैंगलोर में एक बंदा पकड़ा गया है। मैं कर्नाटक से हूँ। हाँ, 31 बिटकॉइन वाला पकड़ा गया है। अच्छा बात है। इन एंटायर वर्ल्ड नो वन कैन हैक। अमित भाई आपने ही पकड़ा क्या? नहीं सर, मैंने नहीं पकड़ा, लेकिन मुझे जिक्र ऐसे हुआ कि जब वो पकड़ा गया उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं है कि हम बिटकॉइन किसी से जब्त कर सकें। जब्त नहीं कर सकते। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप बहुत अच्छी बात किया। बसवराज गवर्नमेंट क्या किया, उसको अंडरग्राउंड कर दिया अभी कि उसको पकड़ के अंदर रख दिया। उसको बेल कितना आसानी से मिल गया, पता है? राज, हाँ, 2 मिनट जी बोलिए। वो कुछ बता रहे, सुन लो। मैं ये कह रहा था कि जब ये उसको पकड़ा गया तो ये लोग काफी एक्साइटेड हो गए। 31 बिटकॉइन बहुत बड़ा रकम होता है। आपको भी पता है बिटकॉइन की वैल्यू क्या चल रही है। तो बड़ा न्यूज बन गया, लीक हो गया, और उसके बाद पुलिस को ये नहीं पता था कि अब बिटकॉइन है इसके पास तो इसको हम सीज कैसे करें। तो पुलिस ने पूरा डिस्कशन शुरू हो गया फोरम्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तब मुझे पता पड़ा कि कुछ आए हैं और उसका एसओपी बनाना है। तो जब वो समझ में नहीं आया, कोई ऐसा लॉ ही नहीं है, कैसे हम रखेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हर एक कोई दूसरी तरह का जो एसेट होता है उसकी सीजिंग के लिए प्रोसेस है, एसओपीज है, पर बिटकॉइन को कैसे रखेंगे उसका कोई था नहीं। तो इन्होंने जब डिस्कशन किया तो एक डिसीजन ये लिया गया कि गवर्नमेंट का अकाउंट खोल दिया जाए, बिटकॉइन वॉलेट, क्योंकि बिटकॉइन इट्स स्टिल नॉट ए लीगल टेंडर इन इंडिया। तो उसके लिए कोई ऑफिशियल अकाउंट्स भी नहीं है।
तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का अकाउंट खोला जाए और उसमें इसको सबमिट करा लिया जाए, उससे कहा जाए 31 बिटकॉइन गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दीजिए। तो ये तरीका निकाला गया, एक अकाउंट खोला गया, अप्रूवल लिए गए ऊपर डीजीपी लेवल के, फिर उससे ट्रांसफर करने को बोला गया, तो उसने कहा ठीक है, मैंने उसने वो एक साइबर एक्सपर्ट है, कोई पता नहीं मुझे उसका नाम, लेकिन उसको लाया गया बेंगलोर में, उसके मतलब इस प्रेजेंस में वो ट्रांसफर हुए एंड देन दे सील्ड इट कि भैया ट्रांसफर हो गए। उसके बाद पता पड़ा कि जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, जब चेक किए गए थ्रू कोर्ट नोटिस, तो उसमें कोई बिटकॉइन था ही नहीं। सो बेसिकली उस बंदे ने बेवकूफ बना दिया कि हमने ट्रांसफर किए पर वो हुए नहीं, क्योंकि वो जो वॉलेट दिखा रहा था 31 बिटकॉइंस का, वो किसी एक्सचेंज का था और वो एक्सचेंज इनके कंट्रोल में नहीं होता। सो आइदर अब वो डिटेल, चूंकि अभी उन्होंने फिर होल्ड कर दिया है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन में है, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आई फोरसी। ये मैं जो पहले भी हिंट दे रहा था पिछली बार जो हमारी एक लॉबी डिस्कशन हुई थी, कि चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में भी लोगों को इतने ज्यादा इल्यूजन्स हैं, लोगों को लगता है कि सारी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की तरह होती है। सारी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की तरह नहीं होती है। क्रिप्टो बिटकॉइन का एक अलग वे ऑफ वर्किंग है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सिंगल गाइडलाइन, वो गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है, वो सब चीजें उसके फेवर में जाती है। पर अधिकतर क्रिप्टो करेंसीज सेंट्रलाइज्ड है, अधिकतर, जो लोगों को पता ही नहीं है। इनफैक्ट काफी सारी एनोनिमस और डिसेंट्रलाइज्ड है, पर अधिकतर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, जहां टोकन इश्यूज करती है गवर्निंग बॉडी। So don't consider that your investment is equally safe or equally valuable in either the different type of cryptocurrency. ये सब चीजें इतनी अवेयरनेस कम है, ब्रांड बन गया है, लोग किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज लॉ एनफोर्समेंट के लिए ये है कि हर एक क्रिप्टो करेंसीज को प्रोसेस करना और उसको इंटैक्ट रखना, क्योंकि कई सेंट्रलाइज भी है ना, तो उनकी फेस वैल्यूज भी कम हो जाती है। तो उस वजह से काफी सारे चैलेंजेस हैं, रेगुलेशंस नहीं है। अभी कोर्ट ने एक ऑर्डर जरूर दिया है इसको, आरबीआई को, कि आप इनके लिए एसओपीज बनाइए। एक साल से ऑर्डर पड़ा हुआ है कोर्ट का, मेरे ख्याल से 2019 एंड में या 2020 शुरुआत में दे दिया था, वो आज तक तो नहीं बना। तो दे आर स्टिल इन दैट dwindling situation, there's no clarity on top of it। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो एक टेम्परेरी तरीके निकाल के सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जो गलत है मेरे ख्याल से। तो उस वजह से सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी आरबीआई अपना भी कॉइन लाने की कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल से मार्च तक, जहां तक मेरी खबर है, आना चाहिए। दे आर वर्किंग हार्ड, सिक्योरिटी को लेके काफी कंसर्न है, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि कॉइन लाएं और कल के दिन हैक हो जाए, 2 दिन बाद तो फिर पूरा ट्रस्ट खत्म हो जाता है। सो बहुत मल्टीपल वो किए जा रहे हैं। But sir, one thing, is that possible to hack cryptocurrency and Bitcoin? Mainly, I'm telling about Bitcoin. Is that possible to hack? As your knowledge, I want to know about that. Is that possible? मैं थोड़ा इसको देखो, समझने की कोशिश कीजिए कि बिटकॉइन की जो लेजर है उसको हैक करना पॉसिबल नहीं है। जो ब्लॉकचेन लेजर है, यू कांट मैनिपुलेट, यू कांट एडिट, यू कांट ऐड एनीथिंग इन इट। सो हैकिंग उस साइड से नहीं है। लेकिन जो यूजर है, जो एंड यूजर है, जैसे आपके लिए जो एक वॉलेट होता है, उस वॉलेट के अंदर कुछ बिटकॉइन टोकन्स होते हैं, वो वॉलेट हैक हो सकता है। इसमें क्या हो गया, these things that opposition party took and political matter, वो क्या हो गया, जब पॉलिटिकल मैटर पिक किया, जब हमारे सीएम बसवराज बोम्मई ने क्या किया, उसको अरेस्ट कर दिया, वापस उसको पूछताछ किया, उसके बाद में क्या असर आया, उसमें क्या हो गया, जितना नंबर ऑफ पीपल से ही टोल्ड एवरीवन फ्रॉम कांग्रेस। अच्छा। yeah. This is a big thing. One more candidate is he is a youth president of Congress. I don't remember his name. शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। उसका बच्चा कर दिया था, सब गोलमाल कर दिया था, उसको पैसे दे दिया था। सब करने के बाद अभी सब चुप बैठ गए, तो मतलब आ गया हमारे ऊपर, जब चुप बैठेंगे। ऐसे इसके बाद में वापस वो लोग अभी उसको भी अंडरग्राउंड कर दिया है। जो बंदा पकड़ा गया था उसको अंडरग्राउंड कर दिया, 2 दिन से नहीं दिख रहा है। अभी उसके लिए तलाश में ऑफिस पुलिस पड़े हुए,
मिलेगा बंदा, कहीं नहीं जाएगा, मिलेगा। गुड इवनिंग, नमस्कार। अमित जी, एक मतलब ये जैसे अभी आपने एक बात कही कि क्रिप्टो कॉइन और बिटकॉइन, तो वेस्ट में भी इस बात का बड़ा अंदेशा है कि ये इसको इस्लामिक रेडिकल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके बड़ी तादाद में मेंबर्स बनते जा रहे हैं और वो यूज हो रहा है। आपका इस पे क्या ख्याल है? और वहाँ तो बाकायदा इस पे कानून डेवलप हो रहा है। आप क्या लगता है कि इंडिया फॉलो करेंगे उस चीज को? मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ। कई सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं, क्योंकि करीब 1,500 से ज्यादा 2,000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज, एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज हैं जो डार्क वेब में यूज होती है आज की डेट में, और इससे ज्यादा ही होंगी। मतलब जो कॉइन्स तो बहुत सारे निकल जाते हैं, हर हफ्ते कॉइन लॉन्च हो रहा है। जो प्रॉब्लम यह है कि इसमें से काफी सारी क्रिप्टो या कॉइन्स स्ट्रेटेजिकली लॉन्च किए गए या चलाए जा रहे हैं जिनके आका ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वो एक ज्यादा बड़ा खतरा है, और उसमें वो डोनेशंस भी लेते हैं, उसमें वो रैंसम भी लेते हैं, उसमें वो सब कुछ एक्सटॉर्शन भी करते हैं। तो वो करेंसी का कंट्रोल भी वही है, और उस करेंसी में वो एक्सचेंज भी करना चाहते हैं। वो पीयर टू पीयर होता है। क्रिप्टो करेंसी क्यों ज्यादा बूम करती है? क्योंकि ये पीयर टू पीयर ट्रांसफर, इसमें कोई बीच में बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो it is not only faster but it is also a quick and safer way for anybody to move money from one place to another place. तो ये ज्यादा जो आप हिंट दे रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन चैलेंज यही है कि आप कितनी भी गाइडलाइन या रेगुलेशंस ले आइए किसी भी देश के अंदर, इंडिया के अंदर आप कितनी भी गाइडलाइन ले आइए, वो गाइडलाइन या रेगुलेशंस उन लोगों के लिए होती हैं जो लॉ अबाइडिंग होते हैं। कि भाई आप, यदि ये गाइडलाइन है कि आप बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर सकते, यदि आप करोगे तो आपको 2 साल की जेल है, वो तो उसके लिए है ना जो डरता है उस लॉ को फॉलो करना चाहता है। जो क्राइम ही करना चाहते हैं या जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनके लिए लॉ बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से वो चीज रोकना थ्रू लॉ तो बहुत मुश्किल है। उस चीज को रोकने के लिए टेक्निकल सॉल्यूशंस ही हो सकते हैं कि आप स्पेशल मॉनिटरिंग शुरू करो ट्रैफिक की, उसके बाद बवाल शुरू हो जाएगा। अभी डेटा प्राइवेसी बिल ही देख लीजिए कितना सीमलेसली निकल पाता है। 29 नवंबर के बाद जब ये डिस्कशन शुरू होगा तो अमित जी, आप सोचो कि मॉनिटरिंग शुरू कर दें हम ट्रांजेक्शन्स की, तो ये तो खा जाएंगे हमें कि आप जीत नहीं दे रहे हो। प्रॉब्लम तो है ना, मगर इसमें कई ममालिक के सर्विसेज ने वर्क किया है और उन्हीं की एक खैर वो एक अलग मैटर है। अमित जी, मेरा एक सजेशन था क्या अगर हम एक सात्विक करेंसी निकालें या सात्विक कॉइन निकालें तो उससे ये कुछ चेंज हो सकती है सिचुएशन, लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाएं और गवर्नमेंट भी उसको अप्रूव कर दे तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चेंज, गवर्नमेंट ही सात्विक कॉइन निकालेगी। जो गवर्नमेंट आरबीआई निकालने वाला है वो एक्चुअली वही है कि उसमें आपको केवाईसी के बाद अनुमति मिलेगी कि आप पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर लीजिए, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी पैसा भेज दीजिए। पर प्रॉब्लम यह है कि जो फायदे एनोनिमस रहकर पैसा देने के हैं वो फायदे नहीं मिल सकते ना आपको सात्विक कॉइन में। आप तो चाहते ही हो छुपना, आप चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी ना रिवील हो। तो जितने भी सात्विक या लीक मतलब इस तरह के पॉसिबल ऑप्शंस होंगे वो उन लोगों के लिए होंगे जो लीगल बिजनेस करना चाहते हैं और फास्ट करना चाहते हैं, एफिशिएंट करना चाहते हैं। उनको फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। दे विल मूव फास्ट एंड देन दे कैन डू, स्पेशली जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस है वो काफी फास्ट हो जाएंगे और काफी स्मूथ हो जाएंगे। अमित जी, अभी तो खैर एक पंचर वाले ने भी क्रिप्टो का मेंबर बना हुआ है। प्रॉब्लम तो ये है, आपको पता है इंडिया में 12 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में, 12 करोड़। तो आप देख लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी पे कितना बड़ा ट्रस्ट है। इतना ट्रस्ट तो इंडिया की करेंसी पे नहीं है लोगों को जितना क्रिप्टो करेंसी पे आज की डेट। 12 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और एवरेज मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ 5 to 10,000 रुपीज है। तो ऐसा भी नहीं कि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
अमित जी, और एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी का एक प्लेटफॉर्म है पीआई करके, उसमें माइनिंग कर रहे हैं अब लोग, बहुत माइनिंग कर रहे हैं। वो लोग 10 मिलियन के बाद में ऐसे दे देते, ऐसे ऐसे माइनिंग हो रहा है। Is it possible to they get your money or like what they get valuable on this mining on mobile? Is it possible they can get some valuable on crypto? माइनिंग क्या होती है, थोड़ा आइडिया है आपको? फिर मैंने तो एक्सप्लेन करूं। सर हमको तो आइडिया है ही नहीं है, हमको जस्ट वो मोबाइल में ऐप आ गया, उस पे माइनिंग कर रहे बस। हाँ, तो वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। माइनिंग एक्चुअली मैं आपको यदि सिंपल करके बताऊं तो जो बिटकॉइन की जो एल्गोरिथम है टू जनरेट अ बिटकॉइन, इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और उस मैथमेटिकल फॉर्मूला में 4 वेरिएबल हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। मतलब जो जिसके बेस पे, मतलब एक तो होता है डेट एंड टाइम, ब्लॉक की प्रीवियस वैल्यू, नोएंस की वैल्यू। तो ऐसे जब आप ब्लॉकचेन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, हैश वैल्यूज ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक एंड ऑल। इसके बेस पे नया ब्लॉक डिसाइड होता है, और वो नया ब्लॉक डिसाइड करने के लिए एक एल्गोरिथम है। उस एल्गोरिथम में आप ट्रायल एंड एरर करते रहते हो, और तब जाके वो नॉइस की वैल्यू जो फ्रैक्शंस ऑफ उसमें होती है डिजिट्स में, वो निकाली जाती है। जो सबसे पहले वो नॉइस निकाल लेता है वो ब्लॉक जनरेट कर सकता है, ही इज द विनर। इसी तरह से बिटकॉइन माइनिंग है कि जो एल्गोरिथम को सॉल्व करके सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेगा वो वैल्यू, वो उसको अवार्ड मिलेगा, उसको बिटकॉइन मिलेगा। लेकिन वो सॉल्व करना इतना आसान नहीं है एल्गोरिथम, उसके लिए हैवी प्रोसेसिंग स्पीड और पावर की जरूरत होती है। मतलब आप पैरेलल प्रोसेसिंग भी करोगे, मिलियंस ऑफ चाहिए होती है। हाँ, तो उसलिए क्या करते हैं लोग कि यदि आप विदेशों में जाओगे तो माइनिंग कंपनीज हैं, वो सैकड़ों हजारों टर्मिनल्स पैरेलल रन करते हैं, पावर पंप करते हैं, बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है। उसके लिए गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी होती है, क्योंकि इतना पावर आप किस लिए कर रहे हो, सिर्फ एक बिटकॉइन जनरेट करने का। और बिटकॉइन उनको अवार्ड में मिलता है जब वो जनरेट, मतलब एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं। तो अब हैकर ने क्या कर लिया, हैकर लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस बना लेते हैं, मोबाइल ऐप, और हर एक ऐप के अंदर माइनिंग एल्गोरिथम रन करते हैं। माइनिंग एल्गोरिथम बड़ी सिंपल सी होती है, स्क्रिप्ट होती है। तो वो क्या करते हैं, जब आपके फोन में बैकएंड पे एप्लीकेशन चल रही है तो आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप भी उनके लिए माइनिंग कर रहा होता है, आपके लिए नहीं, उनके लिए। तो बेसिकली दे आर कंज्यूमिंग योर पावर, योर प्रोसेसिंग स्पीड, जो भले ही फ्रैक्शन हो, बट वो फ्रैक्शन ऐड होके इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट। बिकॉज आजकल मोबाइल में भी अच्छे खासे प्रोसेसर होते हैं और अच्छी खासी मेमोरी होती है, तो कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं, मतलब इट्स बेटर देन अ लैपटॉप। सो वो रन करते हैं, और कई बार वो आप देखोगे कि कई सारी वेबसाइट हैं उसके अंदर माइनिंग स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। जो आप वेबसाइट जैसी खोलोगे तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि पीछे कोई बैकएंड पे ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा होता है जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को यूज कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड बाय क्रिमिनल्स, हैकर्स, माइनिंग कंपनीज to consume more and more processing speed and powers so that they can solve that algorithm quickly and faster and win Bitcoin. अब win Bitcoin क्यों? क्योंकि Bitcoin की एक कैप है, अपर कैप है। अच्छा ये भी जानना जरूरी है कि हर एक क्रिप्टो करेंसीज की अपर कैप नहीं है। जैसे बिटकॉइन का एक अपर कैप है, 21 मिलियन बिटकॉइन टोटल जनरेट हो सकते हैं, इसके बाद जनरेट ही नहीं होंगे। उसमें से 18 मिलियन 17 मिलियन प्लस कुछ जनरेट हो चुके हैं। तो मतलब है कि टोटल 4 मिलियन बिटकॉइन ऐसे हैं जो बचे हैं, 3 to 4 मिलियन। और वो जो लास्ट बिटकॉइन जनरेट होगा वो होगा 2 to 40 में, मतलब करीब 120 ईयर्स के बाद। तो उस वजह से, और वो क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएगी, जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएगी, तो उसके बाद एक एक बिटकॉइन जनरेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि इस वजह से जो वैल्यू है बिटकॉइन की वो बढ़ेगी, क्योंकि अपर कैप है। डिमांड, सप्लाई बंद हो जाएगी, सप्लाई स्लो हो जाएगी, तो डिमांड यदि बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ जाएगी। दिस इज द रीजन दैट कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन माइनिंग एंड ऑल। अमित जी, इज दैट अ फ्यूचर? सी फ्यूचर उस चीज का है, फ्यूचर डेफिनेटली जो आज तक का स्टेटस है उसमें फ्यूचर दिखता है। पर कल के दिन यदि कोई आपसे कहे कि यार ये तो सब पीछे 6 कंपनीज ने मिलके एक ड्रामा क्रिएट किया था और फ्लूक था और पैसा बना के भाग गए लोग, तो
तो आप क्या करोगे? क्योंकि इसकी कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, मॉनिटर कर रही है। कोई सेंट्रल बैंक टाइप बॉडी नहीं होती इसकी, ये कम्युनिटी है। कल के दिन कुछ भी हो गया तो कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं होगा जिसके पास जाके आप कहोगे भाई मेरे पास 500 बिटकॉइन है, अब पैसा तो दे दो। वो जब तक चल रहा है तक चल रहा है। तो जब भी डिसेंट्रलाइज चीजें होती है उसके नुकसान यही होते हैं। सेंट्रलाइज चीजों के नुकसान ये है कि वो सेंट्रलाइज कंट्रोल है, तो आपको ऑफ कोर्स उसके रेगुलेशन। सर अमित जी, अभी एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 80 लाख हो गए, शायद ज्यादा होने चाहिए अभी कितना? हाँ ज्यादा हो गया। इलॉन मस्क ऐसे बोल रहा था, मतलब सारा लाइफ ऐसे चलेंगे, क्रिप्टो करेंसी के पीछे भागेंगे, इसलिए वो खरीद लिया, बिटकॉइन को खरीद लिया। अभी उसको एक बार ऐसा नुकसान आता है ना, जैसा we cannot imagine उतना मनी एक दिन में गवा देता है, वापस एक दिन में ही कमा देता है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस वर्ल्ड में ऐसे हो सकता है क्या जी? एक बिटकॉइन की वैल्यू भी 44 लाख है, 43 लाख प्लस कुछ। तो आप मान के चलिए कि थोड़ा भी फ्लक्चुएट करेगा। जो करते हैं आप ग्राफ देख लीजिए, गूगल पे जाइए, बिटकॉइन प्राइस का ग्राफ देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि डे ट्रेडिंग की कितनी पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर। जिस भी चीज में फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा होता है ना, वो जनरेटेड होता है फिर वहां पर किया। जैसे आप देखो, मैं आपको यदि दिखाऊं तो सिर्फ आज का 12 बजे से शाम तक में 42 से 44 का वेरिएशन है, मतलब 2 लाख का वेरिएशन है। नीचे तक गया है, 42 से नीचे गया 41.5 तक, और मैक्सिमम 44 तक गया। दिस इज सिंगल डे वेरिएशन आई गेस। हाँ, थैंक यू। तो ये चांसेस, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है, अब जो शेयर मार्केट में वो ज्यादा जानते हैं इस चीज को, मैं नहीं हूं, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये क्रिएट किया जाता है क्योंकि इसमें बियर भी कमाता है और इसमें बुल भी कमाता है, दोनों कमाते हैं। जब नीचे जाता है तो वो कमाता है, जब ऊपर जाता है तो वो कमाता है। बाकी लोग पैसे लूज करते हैं जो उस फ्लो को नहीं समझ पाता। सर, ट्विटर के अकाउंट की वल्नरेबिलिटीज के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? लाइक आर दैट पॉसिबल कि और उनके जो गेटवेज है वो बहुत हार्ड है ब्रीच करना, इज इट पॉसिबल? क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसी चीज कोई भी नहीं कह सकता इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये चीज हैक नहीं हो सकती। नोबडी कैन मेक सच स्टेटमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली आप बहुत साउंड हो गए, आपने सारा हार्डनिंग कर रखी है और जितने भी एडवांस सिक्योरिटी टूल्स हैं सब डिप्लॉय कर रखे हैं। पर एट द एंड जो बंदा उसको मैनेज कर रहा है वो कोई आदमी होता है, और वो आदमी इससे गलती कराई जा सकती है, गलती हो सकती है, वो चेंज भी होता रहता है, और एक नहीं कई लोग होते हैं। जब इतना बड़ा सिस्टम हो जाता है तो एक बंदा नहीं कर रहा होता है। एक तो वो 24/7 मैनेज हो रहा था और उस 24/7 में भी हजारों लोग होते हैं, और एक किसी की गलती से वो पूरा सिस्टम सवालिया निशान लग जाता है उस पर। तो इसलिए, और ये चीजें कंटिन्यूअस है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सिक्योरिटी लेवल अचीव कर लिया तो अब आपको कोई भेद नहीं सकता, क्योंकि हर एक दिन नई नई चीजें आ रही है। ओएस बदल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा एप्लीकेशंस बदल रही है जो फोन के अंदर आती है। किसकी वजह से आपके एंड यूजर पर डेटा कंप्रोमाइज हो जाएगा आपको नहीं पता। फिर सिस्टम जो सर्वर्स हैं वो भी अपग्रेड होते हैं। जिस सर्वर पर होस्ट कर रखा होगा ट्विटर डेटाबेसेस या फ्रंट एंड बैक एंड, वो सारे अपडेट होते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो कब एक छोटी सी गलती, कोई पैच अपडेट नहीं हुआ, कोई फायरवॉल का पैच अपडेट नहीं हुआ, कोई वीपीएन का पैच अपडेट नहीं हुआ, एंड पॉइंट का पैच अपडेट नहीं हुआ, एनपी सिस्टम्स के पैच अपडेट नहीं हुए। सो देयर आर, एक ही सिक्योरिटी पाइपलाइन में कम से कम 30 से 40 चीजें तो ऐसी हैं जो रेगुलर अपडेट मांगती है। सो वो प्रोसेस, तो बेसिकली हम हमेशा कहते हैं कि सिक्योरिटी 3 चीजों पर डिपेंड करती है: पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो प्रोसेस की, ये टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहे बिल्कुल रियल टाइम में, और फिर पीपल तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्विटर भी फाइट कर रहा है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका सिक्योरिटी बजट है, तब भी हैक हुए थे। और वो छोड़िए आप, कॉग्निजेंट जो दुनिया भर को सिक्योरिटी सर्विसेज देता है, उनका डेटाबेस उड़ गया, वो रैंसमवेयर अटैक हो गया। सॉफ्ट बैंक पे हो गया,
एंड देयर आर मेनी मेनी सच कंपनीज जो दूसरों को सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही हैं, वो हैक हो रही हैं. Abhijit, mine is a related question to this, to digital media. If we look at 2024 and we see the massive critical role that social media plays today, one can only imagine the kind of yarns that will be spinned by the time 2024 dawns. In your assessment, what are the things, especially the big handles that are active and constantly calling out the lies of various propagandas, will face, and what should people be wary of so that what happened in America doesn't repeat itself here? देखिए, ऐसा है कि कई सारी चीजें दोनों तरफ से चलती हैं. जो फेक कंटेंट प्रमोशंस या बॉट्स क्रिएशंस या एक स्ट्रैटेजिक कैंपेन चलाना किसी के अगेंस्ट, डिमोरलाइज करना, ये सब चीजें बहुत कॉमन है, हो रही हैं. लेकिन अभी एक आपने अनाउंसमेंट सुना होगा फेसबुक का कि फेसबुक इज डाइवर्सिफाइंग एंड दे आर चेंजिंग देयर टेक्नोलॉजी टू मेटा. अब मेटा का क्या चैलेंज है कि मेटा विल चेंज नॉट ओनली योर एक्सपीरियंस बट विल आल्सो एक्सपोज यू अ लॉट. अभी जितना आप फेसबुक पे एक्सपोज करते हैं अपने आप को, उससे कई गुना ज्यादा आप एक्सपोज करोगे. तो उस वजह से एक नुकसान और फायदा बता रहा हूं. फायदा ये है कि चूंकि आप ज्यादा एक्सपोज होगे तो आपको जो पहचानने के तरीके हैं वो ज्यादा आसान हो जाएंगे. अभी आप सिर्फ आपकी एक्टिविटीज या उससे पहचाना जाता है, बट देन या फोटोग्राफ से, बट एनीबडी कैन क्लोन दैट. But tomorrow, if we create an environment where you can shake hand in virtual world with somebody and you can feel the pressure, तो मुझे ये फील भी होगा कि आप किस तरीके से हैंडशेक करते हैं. I'll recognize you like that. So that will be more realistic जो एक्सपीरियंस होंगे. नुकसान ये है कि उसमें यदि कोई क्लोन कर लेगा आपको, तो फिर ही कैन, जो क्राइम जिस तरह का कर सकता है ना, ही कैन डू एनीथिंग विद योर लाइफ. तो वो दोनों हैं, दोनों एक्सट्रीम पर जा रहे हैं कि आपका जो बायोमेट्रिक डेटा है या जो आपकी वे ऑफ वर्किंग है, अभी तक टाइपिंग स्पीड या टाइपिंग पैटर्न रिकॉग्नाइज की जाती थी. अब वर्चुअल वर्ल्ड में तो आपकी हर चीज, आप आईबॉल कैसे मूव करोगे, आप गर्दन कैसे मूव करोगे, आप हैंड कैसे मूव करोगे, वो तक जाएंगे. सो दैट इज द फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस एंड आई थिंक वो फेसबुक कह रहा है कि 5 साल में ले आएगा. यदि वो 5 साल में बोल रहा है तो आई एम श्योर 3-3.5 साल के बाद आपको बीटा वर्जन आने शुरू हो जाएंगे और 5 साल तक तो वो फुल फ्लेज कमर्शियल बना देगा उसको, जिसमें आपको ये प्रोविजंस भी होंगे कि आप अंदर शॉप खरीद सकते हो उस वर्ल्ड में. एंड जितना टाइम आज हम फेसबुक पे बिताते हैं उससे ज्यादा को बिताना शुरू कर दें. So these are more challenges, I think, and that will impact our democracy, political system, everything. I'm more worried for youngsters, क्योंकि अभी भी वो जितना टाइम सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, I think that will increase eventually once that sort of realistic experience will be there for on social media. Amit ji, it's all happened because of Modi ji. हमें पहले डेटा तो बहुत कम मिलता था, अभी तो हम लोग रात भर भी ऑनलाइन में रह सकते हैं, डेटा पे रह सकते हैं. कुछ इतना चेंजेस हो गए, फिर भी हमको सिक्योर लाइफ नहीं मिलेगा इस डिजिटल वर्ल्ड में. आपसे एक पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा हो सकता है? आपकी आवाज सर क्लियर नहीं आई मुझे.
मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है सर, और कोई पूछ सकता तो पूछेंगे। सर एक हैकिंग की क्लास ले लो ना सबकी। बिल्कुल सर, एक उसमें ना मुझे स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना पड़ेगा, तब आप लोग ज्यादा समझ पाएंगे कि कैसे होती है चीजें। ऐसे वर्बली बताने में कई बार वो फील नहीं आता, वो मुझे मेटा वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा पहले। तो हम कुछ जूम वगैरह कर सकते हैं या कुछ वैसे कर सकते हैं। आज आपने बहुत बड़ी सर्विस दी है। पूरे 20-25 मिनट क्लब हाउस में इस रूम में फार्म लॉ डिस्कस नहीं हुआ। सर हम वापस वही आएंगे, ठीक है, हम पूछेंगे अमित सर जी को पूछेंगे। मुझे पता है कि लोग डिसअपॉइंटेड हैं फार्म लॉज की, बस मैं उनको सच्चाई बता दूं कि डिसअपॉइंट होने की कोई कारण नहीं है। एंड जस्ट बी लिटिल, थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंट रहें, इट्स अ बिग थिंग। एंड बाकी जो मतलब मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, कुछ मेजर ऐसे इंटेल थे, समझ सकते हैं। एक बात आप हमको बता दीजिए, इज इट परमानेंट सॉल्यूशन और जस्ट मोदी जी राज, आपने ना, आई हैव अ कोटा फॉर एवरीवन, आपका कोटा फुल हो गया है अगले 15 दिन के लिए। ठीक है, मैं सुनता रहेगा हिमांशु जी, मैं सुनता रहेगा। या नो प्रॉब्लम। Oh God. राज पूरा टेक ओवर कर लेता है, इधर हाईजेकर। हाय प्रिंस, हाय आकाश। हम सुन रहे, आप बताएं। कोई और सवाल है तो फिर मैं रुकूं, अदरवाइज एक्चुअली मैं भी थक गया हूँ सुबह से, थोड़ा सा विदा लेना चाहूंगा। हिमांशु अमित जी मेरा कोटा कंप्लीट हो गया, फिर भी मैं कुछ पूछ सकता था। हिमांशु जी बोल दिया। बोल दिया, मैं क्वाइट हो जाएगा। आप कल पूछ लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मेरा गला भी बहुत, कोई बात नहीं। थैंक यू। हिमांशु जी अभी आ गया, लेना चाहूंगा कि मैं आपको देख के एकदम आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला भी बहुत गड़बड़ है। वो लग रहा है आपका कंटिन्यूअसली बहुत खांसी आ रही है। गर्म पानी पी के मैं भी हम सुन रहे हैं। अब हम भी जा रहे हैं, शुभ रात्रि, बहुत लेट हो गया मेरे को। हाँ अनंता जी, मैं भी रूम बंद ही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए जी, नमस्ते। थैंक यू अनंता जी। नमस्ते हिमांशु जी, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते।